आप सुप्रीम कोर्ट लिए चल रहे हैं जहां पर सुनवाई जो है इस मामले की शुरू हो गई है। सुनते हैं एक बार यहाँ पर क्या कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग में चल रहा है। No, Your Lordship, I'm just one of the caveat that I'm just putting. You're right. Yes, you're right. There are other You're very, right. very complex issues. Whether Your Lordships would like to go into that, not go into that, once we know, then we'll be able to address Your Lordship. That's exactly what we thought that's Can I conclude, my lord? Can I complete my request? Yeah. My lord, I'm sorry, my lord, my lords. Slightly, my lord, preempted my request. First of all, I'm making it very clear. My preliminary my lord, objections are not my objections on the merits. If merits were to be gone into, there are separate set of arguments. These are not, my lord, these are only for deciding which forum would adjudicate upon and which forum would be the suitable forum and constitutionally the only permissible forum where this debate can take place. So by the very nature of the objection, it must, in my respectful submission, be heard first. While arguing my preliminary objection, I'll not raise any submissions on the merits of the case. I'm, my lord, very, very clear about it. And, my lord, therefore, my lord, your lordship, solicitor, we'll reserve, whether to hear you on the preliminary objection at this stage. After they have opened up, just for about 15 to 20 minutes. Then your lordships may do one thing, my lord. That's the another request. My lord, let them give, my lord, their, my lord, whatever submissions they want, overview, confined to, my lord, what my preliminary objection is. My lord, I can't be non-suit. Certainly not. We'll not do anything. Open my case. My lord, I'm sorry, my lord. My lord, I'm sorry. I'm sorry, Mr. Solicitor. We are in charge. We will be here, Mr. I'm sorry, my lord. Kindly last minute, my lord, last. Mr. Solicitor, we'll hear you later. Yes, Mr. My lord, only a minute, my lord, only a minute. No. My lord, your lordships may give me a minute. Indicate to us how we will conduct the proceedings. No, I'm not, my lord. I am earnestly I'm not allowed request. in my court. My lord, I am earnestly request. I would never do that. Your lordship knows, my lord. Yes. My lord, this is a matter, my lord, too sensitive an issue, where, my lord, your lordships would examine the preliminary submissions and हमारे सहयोगी शरद शर्मा का जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है और हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जो हैं वो प्रोसीडिंग्स के भीतर है, वहाँ पर वो सुनवाई जो चल रही जिसकी हम आपको लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शरद, यहाँ पर केंद्र की तरफ से एसजी तुषार मेहता जो हैं वो खड़े हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये याचिकाएं जो हैं सुनवाई योग्य नहीं है। यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार ऐसे मामलों में ये साफ करना चाह रही है कि ये काम कोर्ट का नहीं है। केंद्र सरकार ने कल भी हलफनामा दिया है और उसमें भी ये साफ था कि केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि ये एक संभ्रांत अवधारणा है, यानी एक क्लास है जो जिसमें ये चीज चल रही है या वहां पे अवधारणा मानी जा रही है। ये भारतीय समाज में ये जो चीज है ये प्रचलित नहीं है। केंद्र सरकार लगातार ये भी कह रही है कि इस विषय पर अगर कुछ भी करना है तो सभी लोगों से, चाहे वो शहरी हों, अर्ध शहरी हों, ग्रामीण हों, कहीं पर भी अगर इस मामले में कुछ करना है तो विधायिका इस बारे में कानून बनाने के लिए सक्षम है। कोर्ट जो है उसको इस मामले के अंदर दखल नहीं देना चाहिए। असल में दीदी मामला ये है कि ये जो मामला है सेम सेक्स मैरिज का, ये केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के स्तर पर जो है भारत पर नजर लगी हुई है कि भारत जो कि अपनी परंपराओं को लेकर, अपनी सामाजिक मान्यताओं को लेकर आगे बढ़ रहा है, क्या अब भारत इस दिशा में भी जा सकता है। तो सरकार तो इसके विरोध में है, लेकिन जो याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से कपिल सिब्बल खड़े हुए हैं और उनका ये कहना है कि जो राज्य हैं उनको भी इस मामले के अंदर पार्टी बनाया जाए, उनको भी स्टेक होल्डर बनाया जाए। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है 5 जजों की, वो बैठी है और वो सभी पक्षों को सुनेगी और देखते हैं कि किस तरफ जो है ये सुनवाई जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के स्तर पर जो है ये जो सुनवाई हुई है, ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हुई है, इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल शरद, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि कई दूसरे देशों में इसे मान्यता मिली हुई है, कई देशों में इसे मान्यता नहीं मिली है, तो इसे लेकर अलग अलग विचार हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी सहानुभूति रखता है वो यहाँ पर ये तर्क देता है कि ये बहुत ही एक संवेदनशील मामला है, ये अपनी इच्छा का मामला है और ये एक नेचुरल चीज़ है। तो इस चीज़ पर सवाल उठाना गलत है। कहीं ना कहीं जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो ये बात करते हैं और वो ये तर्क भी देते हैं कि जब ये नेचुरल चीज़ है और ये बहुत ही एक छोटा सा तबका है तो इसे आखिर मान्यता देने में किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए।
बिल्कुल, देखिए अलग अलग पक्ष हैं, ये नहीं कह सकते कि यही सही है, क्योंकि केंद्र भी इस बात में ये कह रहा है कि इसके अंदर जो संवैधानिक मान्यता है वो ये है कि आप फ्री हैं, आप आज़ाद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन देश के अंदर जो मैरिज एक्ट बने हुए हैं उसके हिसाब से ये फिट नहीं बैठता है। दूसरा, अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो अपनी अलग अलग दलील दे रही हैं, जैसे कि एनसीपीसीआर जो कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, वो ये दलील दे रहा है कि अगर जो सेम सेक्स मैरिज वाले लोग हैं, जो ऐसा कपल है, ऐसा दंपति है, वो अगर बच्चे गोद लेता है तो ऐसे में बच्चों को नुकसान होता है और संभव है कि वो बच्चे का पालन पोषण ठीक से ना कर पाए। वहीं डीसीपीसीआर जो दिल्ली बाल संरक्षण आयोग है, वो ये दलील दे रहा है कि अध्ययन से ये पता चला है कि जैसे साधारण जो कपल होते हैं, साधारण जो दंपति होते हैं, वो बच्चे की पालन पोषण में कामयाब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ऐसे ही जो सेम सेक्स वाले कपल होंगे उनके बारे में भी यही पाया गया है। तो दोनों तरफ की ही दलीलें हैं और अगर संविधान ये आज़ादी देता है कि आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आप जो हैं सेम सेक्स में मैरिज क्यों नहीं कर सकते। लेकिन जो मैरिज एक्ट हैं उसमें इस बात की अभी तक इजाज़त नहीं दी गई है और इसीलिए केंद्र सरकार इसके विरोध में है। उसका ये कहना है कि शादी नाम की जो संस्था है उसको मान्यता देने का अधिकार कानून को ही है और कानून जो है वो संसद बनाती है, विधायिका बनाती है और इसके हिसाब से केवल पुरुष और महिला के बीच में ही शादी नाम की जो संस्था है उसकी स्थापना हो सकती है। लेकिन ये सरकार का कहना है, जो पिटिशनर हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, वो भी अपनी दलील रखेंगे कि जब समाज खुल रहा है, लिबरल हो रहा है और जब इन सबको डीक्रिमिनलाइज भी कर दिया गया है तो फिर शादी करने में समस्या कैसे हो सकती है। तो ये सुनवाई है, संविधान की पीठ इसीलिए बैठी है कि क्या ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। तो आज से सुनवाई शुरू हुई है, संभव है कई दिन तक ये सुनवाई चले और उसके बाद तय हो कि भारत में क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है, कि सेम सेक्स मैरिज हो सकती है या जी। यहाँ पर जो तुषार मेहता की तरफ से कहा जा रहा है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल जो गुण दोष हैं वो इस पर ना जाए, केंद्र को कुछ समय चाहिए, जिस पर सीजेआई ने ये कहा भी है कि हमें ये ना बताया जाए कि सुनवाई कैसे करनी है, हम कोर्ट के इंचार्ज हैं और आप जो मांग रहे हैं वो सिर्फ सुनवाई टालना ही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आपको अब बाद में सुनेंगे लेकिन हमें केस को शुरू करना होगा। तो एक बार फिर से हम यहाँ पर अपने दर्शकों को थोड़ी सी प्रोसीडिंग्स जो है वो शरद सुनवा देते हैं कि क्या कुछ इस वक्त कोर्ट में चल रहा है। or the order of nature under 377 is now effaced from our statute book, and therefore our rights being equal in all forms, which are, my lord, reflected from Puttu Swami, Navtej, my lord, the judgments of this court on the right to marry a person of your own choice, Shafeen and all that, which I will show. If our rights are identical as held by the state, then we want to enjoy the full panoply of our rights under 14, 15, 19 and 21 to lead a dignified मुकुल life. रोहतगी को सुन रहे हैं जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं और वो यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मौलिक अधिकारों का मामला है और सरकार हर मामले में यही कहती है, अदालत को सुनवाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए।